Good morning, students. Today I will take the revision of chapter number 17. In previous lecture we discussed about the whole exercise of chapter number 17. Today I will revise this chapter. ये चैप्टर मैं आज आपको रिवाइज कराऊंगी ताकि आपको जो भी टॉपिक्स हैं दोबारा से एक बार फिर से रिमाइंड में आ जाए. क्लियर? फर्स्ट डेफिनेशन, canopy. Canopy, what is canopy? The branches of the tall trees look like a roof over the other plant. The branches of the tall trees look like a roof over the other plant. In the forest, it is called canopy. The branches of tall trees look like a roof over the other plant. In the forest, it is called canopy. Okay? Next है understories. Trees had crowns of different types and sizes. Trees had crown of different types and sizes. These had created different layers in the forest called understories. These had created different layers in the forest. Animals for their nutritional need, a chain is formed called food chain. Interdependence of animals for their nutritional need, a chain is formed called food chain. Next, choose the correct option. First is, which tree is called a wild tree? Shisham, simal, teak, all of the given. Answer is all of the given. Right? Next, which is a wild animal? Bear is a wild animal. Bear is a wild animal. Next is, which of the following is not a forest product? Not a forest product. Herbs, gum, resin, plastic. Plastic is not a forest product. Right? Now, fourth one is, what are the microorganisms which can convert the dead plants and animal tissues into dark colored humus called? What are the microorganisms which can convert the dead plants and animal tissues into dark colored humus called? Decomposers. Called decomposers. उनको हम क्या बोलते हैं? Decomposers बोला जाता है. Next, how many percentage of area is under forest cover of total areas in India? कितने percentage है? 21%. 21. Next, which of the following is not a wild animal? इसमें से जो wild animal नहीं है. Goat is not a wild animal. Goat is not a wild animal. Next, which of the following is an animal product? Which of the following is an animal product? Answer is blanks. First is, forest serves as dash lungs and dash system in nature. Forest serves as green lungs and water purifying systems in nature. Forest serves as green lungs and water purifying system in nature. Next, herbal medicines are dash product. Herbal medicines are forest product. Herbal medicines are forest product. Next, the branches of the tall trees look like a roof over the other plant in the forest is called canopy. Is called canopy. Next, the forest act as a natural dash of rainwater. The forest act as a natural absorber of rainwater. Next, the branchy part of tree above the stem is known as crown of the tree. Is known as crown of the tree. Now start, true or false? Monkeys are seen in a forest. It's a true. No other trees are grown under the tall trees in the forest. It's false. Only one type of trees are grown in each forest. It's only one type of trees are grown in each forest. It's a
falls. Next, decaying matter is generally warm and moist. Decaying matter is generally warm and moist. It's a true. All animals is whether the herbivores or the carnivores ultimately to regenerate and grow. The wide variety of animals help the forest to regenerate and grow. It's a true. Next, decomposers help to provide nutrient supply to the trees of the forest. Decomposers helps to provide nutrient supply to the trees of the forest. It's a true. The forest is a dynamic living entity full of life and vitality. It's also a true. Next, one sentence. Which animals live in the deeper area of the forest? Bear, bison, jackals, porcupine, elephants live in the deeper area of the forest. Next, give any one example of warning call to alert animals in forest. क्या कौन सी एक भी बताओ, कोई भी वार्निंग कॉल. मॉन्की क्या है, इधर उधर भागने लग जाते हैं, जंपिंग करने लग जाते हैं ट्रीज पर इधर उधर, ठीक है, और हाई टू हाई क्लाइंब करने लग जाते हैं. तो ये क्या हो जाता है, पूरी हलचल मच जाती है ना, तो ये वार्निंग कॉल हो जाती है एनिमल्स के लिए, राइट. फिर विच एनिमल्स आर सीन ऑन द बार्क ऑफ द ट्रीज. कौन कौन से एनिमल, बहुत सारे insects, spiders, squirrels, ants and various other small animals are seen on the bark of the trees, right. Which tree are seen in the forest? अब फॉरेस्ट में तो बहुत सारे ट्रीज होते हैं ना, साल है, टीक है, सैमल है, शीशम, नीम, प्लाश, फिग, खेर, आंवला, बेम्बो, कचनर, बहुत सारे और ट्रीज हैं जो हमें कहाँ पे मिलते हैं, फॉरेस्ट. In the forest crown created different horizontal layers amongst which gand and tall trees constituted the top layer, followed by shrubs and the tall grasses, right, and herbs formed the lowest layer. और टॉल ट्रीज कौन सी लेयर, टॉप लेयर को फॉलो करते हैं बाय द श्रब्स एंड टॉल ग्रासेस, राइट. इन द फॉरेस्ट क्राउन क्रिएटेड डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर amongst which gand and tall trees constituted the top layer, followed by shrubs and tall grasses, and herbs formed the lowest layer. Okay. How is the floor of the forest? कैसा है फ्लोर? द फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट इज जनरली डार्क कलर्ड, covered with a layer of dead and decaying leaves, fruits, seeds, twigs and small herbs. How are dense bushes and tall grass useful to deer in the forest? The dense bushes is a different horizontal layer created by different types and size crowns of the trees in the forest called, कौन क्या बोलते हैं उनको, अंडर स्टोरीज बोला जाता है. नेक्स्ट, ऑन विच सर्टन फंगाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड अपॉन. सर्टन फंगाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड अपॉन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज. डेड प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज. Nothing goes waste in the forest. Give an example of this. When any animal die in the forest, it becomes food for vultures, crows, jackals and insects. इसलिए कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है फॉरेस्ट में, राइट. नाउ, हाउ डू द फॉरेस्ट ऑफिसर रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ एनिमल इन द फॉरेस्ट. कैसे? उनके फुट प्रिंट से, पैरों के निशान से और ड्रॉपिंग से वो क्या करते हैं, पता कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं प्रेजेंस ऑफ सम एनिमल्स इन द फॉरेस्ट. नाउ 3-4 सेंटेंस एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स. अब
कैसे प्रिवेंट करता है? आपको पता है कि वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं जिसके कारण सॉइल होती है, बारिश होगी या कोई भी वाटर होगा तो वो सॉइल क्या सिप कर लेती है और नीचे ग्राउंड वाटर बन जाता है, जिसके कारण फ्लड से प्रिवेंशन मिल जाती है, राइट। और कोई ज़्यादा बारिश होगी तभी फ्लड आते हैं ना, पर जब बारिश होगी तो वो बारिश के वाटर को जो ट्रीज़ है फ्लो अवे नहीं होने देंगे, अपने में एब्जॉर्व कर लेंगे और वाटर टेबल भी मेंटेन रहेगा, राइट। इसके कारण से क्या होता है? फ्लड से प्रिवेंशन मिलती है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज साइड बाय साइड इन अ फॉरेस्ट, द रूट्स ऑफ द ट्रीज एब्जॉर्ब द वाटर एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्लोइंग अवे। वही मैंने आपको बताया। अब उनमें इतने जो बड़े बड़े ट्रीज हैं उसमें से डायरेक्टली फॉल नहीं होता सॉइल में। रूट ऑफ द ट्रीज ऑल्सो हेल्प इन परकोलेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। जो रूट्स है वो हेल्प करती हैं वाटर का परकोलेशन बनाने में, किसमें? सॉइल में। द फ्लोर ऑफ फॉरेस्ट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स, fruits, seeds, twig and small herbs. Due to the flow of water is controlled and not all the rain water flow off. Thus forest prevents flood. इससे क्या बच जाता है? वो फ्लड से बच जाता है। आपको सीधा लॉजिक रखना है कि प्लांट्स हैं वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को, फ्लो अवे नहीं होने देते। जो बड़े बड़े ट्रीज हैं पहले उनके ऊपर वाटर जाता है, फिर नीचे सॉइल में जाता है, ठीक है। जिसके कारण ये नहीं कि सॉइल भी खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सब कुछ वो लेवल मेंटेन करके रखते हैं, परकोलेशन रेट बना के रखते हैं, राइट। फिर व्हाट आर द डिकम्पोजर्स एंड नेम एनी टू ऑफ देम, व्हाट डू दे डू इन द फॉरेस्ट। अब आपको पता है फंगी और बैक्टीरिया है, ऐसे डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स होते क्या है? जो डेड बॉडीज पर फीड होते हैं, उन पे डिपेंड होते हैं फीड के लिए, ठीक है। डेड बॉडीज हो गया, प्लांट्स हो गया, तो उनकी जो डेड प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उन पर उनके फीड हैं, उन पे वो रहते हैं, ठीक है। और उनको डिकम्पोज कर देते हैं उनकी बॉडी को, क्योंकि उनका फीड क्या है, उनका खाना क्या है? वो ही है डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। और वो वहाँ पे रहेंगे और वो उसको ईट कर जाएंगे, जिसके कारण वो डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ह्यूमस से क्या बनेगा? ह्यूमस प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स, जो कहाँ पे है? फॉरेस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। फॉरेस्ट में, राइट। फिर एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन द मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो आपको पता ही है क्यों बैलेंस मेंटेन रहता है। वहाँ पे कौन है? प्लांट्स और एनिमल्स दोनों है। एक ऑक्सीजन लेता है, दूसरा छोड़ता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और दूसरा वो लेता है। इस कारण क्या हो रहा है? बैलेंस मेंटेन हो रहा है दोनों का, CO2 और O2 का, राइट। हाउ वुड टू मैनी प्लांट्स इन द फॉरेस्ट ग्रो। अब वहाँ पे कोई सीड्स ऐसे नहीं, मतलब खुद हम सीड्स नहीं डालते, वहाँ पे अपने आप ही सब कुछ होता है। कोई वहाँ पे सिर्फ मेंटेन करा रहता है। ग्रो वो प्लांट्स अपने आप ही खुद हो जाते हैं। इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस इनफ सीड्स, खुद वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर डैम टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू सीडलिंग एंड सैपलिंग। और वो जो फॉरेस्ट का फ्लोर है वो वहाँ उनको जर्मिनेट करने के लिए फेवरेबल क्या करता है? कंडीशन प्रोवाइड करता है। सम ग्रो अप इनटू ट्रीज, जिसके कारण वो ग्रो हो जाते हैं ट्रीज में। फॉर ऑल दिस सफिशिएंट वाटर इज अवेलेबल फ्रॉम रेन, उनको सफिशिएंट वाटर मिलता है रेन से, ह्यूमस भी मिल जाती है, जिसके कारण वो अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं। उनको कोई भी ग्रो नहीं करवाता है, सिर्फ मेंटेनेंस करवाई जाती है, बाकी और कुछ भी उसमें एड ऑन नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल्स। नेक्स्ट डिटेल क्वेश्चंस थे। व्हाट इज फूड चेन। आपको पता है फूड चेन में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होता है। प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉप्स हैं, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर और एनिमल्स जो हैं, हार्बीवर्स हैं, कार्निवर्स हैं, वो क्या बोलते हैं? अपने फूड के लिए अल्टीमेटली दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो जो ये डिपेंडेंस है फॉर फूड, इट्स अ फूड चेन, राइट। जैसे क्या होता है? फ्रॉग क्या करता है? फ्रॉग इज कंज्यूम्ड बाय स्नेक। कैसे होता है? देखो,
पहले ग्रास है, ग्रास को कौन खा रहा है? इंसेक्ट्स खा रहे हैं। इंसेक्ट्स को कौन खाता है? फ्रॉग खाता है। फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है। स्नेक को कौन खा रहा है? ईगल खा रहा है। तो ये क्या है? ये एक फूड चेन बनी हुई है, राइट? एक दूसरे पर वो डिपेंडेंस है फॉर द फूड के लिए। नेक्स्ट था इंपॉर्टेंस ऑफ अ फॉरेस्ट। ये तुम्हें खुद भी लिख सकते हो। क्या है इंपॉर्टेंस? सारा चैप्टर हमने डिस्कस करा। क्या है फूड? हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है? मेडिसिन मिलती हैं, इन्वायरमेंट को अच्छा रखता है, वाटर साइकिल मेंटेन रहता है, वाटर टेबल डिप्लेशन में नहीं जाता है, जो पॉल्यूशन है वो कम हो जाता है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहता है, फ्लड्स कम आते हैं जब फॉरेस्ट होंगे तो, राइट? क्योंकि फॉरेस्ट क्या करते हैं? अपने में एब्जॉर्ब कर लेते, और जो फॉरेस्ट में क्या है? प्लांट्स है, वो वाटर को अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद नॉइस पोल्यूशन कम होता है, क्योंकि जो फॉरेस्ट में ट्रीज़ हैं वो जो नॉइस को अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है? एयर पोल्यूशन कम होता है, नॉइस पोल्यूशन कम होता है। ओके, तो ये क्या हो गया? ये उसके इम्पॉर्टेंस थी हमारी फॉरेस्ट की। यहाँ पे मेरा चैप्टर फिनिश हो गया है।